हेलो दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੰਕਲਪ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਡੂ ਸੰਕਲਪ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ है, ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप इंपॉर्टेंट 100 MCQs डिस्कस कर रहे हैं जो पंजाब के एग्जाम लिए बहुत जरूरी ने, बहुत बार रिपीट होंदे रहे ने ते अगे भी होंदे रहणगे। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ और शुरू ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ। ਚਲੋ ਜੀ। When and where did Mopla rebellion took place? ਮੋਪਲਾ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ 1921 ਕੇਰਲਾ, ਬੀ ਹੈ 1923 ਅਸਾਮ, ਸੀ ਹੈ 1926 ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਫੋਰਥ 1932 ਬੰਬੇ। ਸੋ ਮੋਪਲਾ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੋਪਲਾ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਹੋਇਆ 1921 ਕੇਰਲਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। 1921 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੋਪਲਾ ਰਿਬੈਲੀਅਨ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਾਸ ਕੰਸਿਸਟਡ ਆਫ। कैबिनेट मिशन प्लान दे विच कौन सी? ऑप्शंस आर A.B. Alexander, James Wilson and Clement Attlee. Second is Pathing Lawrence, A.B. Alexander या Stafford Cripps. Third is Stafford Cripps, Pathing Lawrence and MacDonald या fourth is A.B. Alexander, Richard Stark या Irwin. So जड़ा कैबिनेट मिशन प्लान है जी, ये आया 1946 दे विच। इहदा ईयर की है 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਇਆ ਜੀ? ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ फॉर्म ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਕੌਣ? कैबिनेट मिशन प्लान। इट इज कंसिस्टेड ऑफ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पैथिक लॉरेंस, A.B. Alexander and Stafford Cripps। ये तीनों सीगे जी इस कमीशन दे विच। ठीक है, चलो आगे देखते हैं जी। When did Muslim call for direct action day? When did Muslim League, इत्थे की आऊगा जी लीग। When did Muslim League call for a direct action day? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होंदा है जी। मुस्लिम लीग ने कदों डायरैक्ट एक्शन डे की कॉल की जिहदे नाल पंजाब ते बंगाल दे विच बहुत सारे राइट्स होए? ऑप्शन देखते हैं जी। 16 मार्च 1940, 16 अगस्त 1946, 16 अक्टूबर 1946 या 16 फेब 1947। सो दोस्तों दा करेक्ट आंसर है जी 16 अगस्त 1946। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 16 अगस्त 1946 दे विच होए जी। 1946 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ ਦੀ ਕਿਸਨੇ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੰਗਾਲ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਫੇਸਡ ਰਾਈਟਸ, दंगे ਹੋਏ ਜੀ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। When did Morley Minto reforms took place? Again important question। Morley Minto reforms ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ? ऑप्शंस आर 1905, 1909, 1901 या 1915। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी 1909। 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਰਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੋਰਲੇ ਵਾਸ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਮਿੰਟੋ ਵਾਸ ਦ ਦੈਨ ਵਾइसरॉय। ठीक है जी। मिंटो उस समय वाइसरॉय सी, मॉरले सीगे सैकरेटरी ऑफ स्टेट। ਜਦੋਂ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਏ ਫॉर ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਟੂ ਮੁਸਲਿਮਸ, ਫॉर ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਟੂ ਮੁਸਲਿਮਸ। राइटिंग ਲਈ मैं क्षमा चाहता जी दोस्तों तो। ठीक है, राइटिंग मेरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, सो कोशिश करो जो मैं लिख रहा समझने दी। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड वर्नैकुलर प्रेस एक्ट? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कदों होया जी? ठीक है, इट इज व्हेन। ऑप्शंस आर 1872, 1878, 1892 या 1899। ठीक है जी। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कदों आया? आप हू भी ना ले लेने, किसने इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शंस हैं जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
1878 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ, ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1878 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਇਨਫੇਮਸ ਵਾਇਸਰੋਏ ਲॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने इंट्रोड्यूस किया जी वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। चलो आगे देखते हैं जी, व्हेन डिड प्रेस सेंसरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, प्रेस सेंसरशिप एक्ट किहड़े ईयर दे विच इंट्रोड्यूस होया। ठीक है, सेंसरशिप हुंदा है किसी चीज़ नूं कटना, पाबंदियां लगानियां, ठीक है जी, कर्टेल करना। ऑप्शंस आर 1799, 1809, 1813 या 1833। सो प्रेस सेंसरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस होया जी 1799 दे विच। ठीक है, वेलेसी ने इंट्रोड्यूस किया जी प्रेस सेंसरशिप एक्ट इन 1799। नेक्स्ट देखते हैं जी, Who was the founder of Depressed Classes Institute? Depressed Classes Institute के फाउंडर कौन से? ऑप्शन ए इज महात्मा गांधी, बी इज बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है MG राणा डे, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो दोस्तों का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वॉज द फाउंडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। Which of the following was the immediate cause of revolt of 1857? इन्हां दे विचों किहड़ा एक immediate कारण है जिहदे करके revolt of 1857 1857 दा विद्रोह होया जी। ऑप्शन देखते हैं, एनफील्ड राइफल्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हैवी टैक्सेशन, अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम। देखो जी वैसे तो सारे रीजनस ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 दे। ठीक है जी, कोई इमीडिएट है, कोई इकोनॉमिक रीजन है, कोई सोशो इकोनॉमिक रीजन है, ठीक है जी, कोई पॉलिटिकल रीजन है, लेकिन ये जिहड़ा इमीडिएट रीजन है दैट इज एनफील्ड राइफल्स। ब्रिटिशर्स ने एनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस कीतियां जिसते कार्ट्रिजिस जो सीगे वो गऊ ते सूर दी चर्बी दे बने हुए सी, जिहदे नाल हिंदू सोल्जर्स ते मुस्लिम सोल्जर्स दे सेंटीमेंट्स हर्ट हो गए। ठीक है, और मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर का मर्डर करता कदों 29 मार्च 1857 नूं। ठीक है जी, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट कॉज की बनया एनफील्ड राइफल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देख, रिवॉल्ट ऑफ 1857 होर की बोलते हैं जी, सिपाही म्यूटिनी, सिपाहियों ने विद्रोह करता जी तां करके की बोलते हैं सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, होर की कहा जाता है इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ध्यान रखियो जी, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है जी किसनों, रिवॉल्ट ऑफ 1857 नूं। नेक्स्ट, व्हेन डिड प्रेस सेंसरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखते हैं, व्हेन डिड गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई, गांधी ने डू और डाई द स्लोगन कदों दिता जी। ऑप्शंस आर ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या ड्यूरिंग ऑगस्ट ऑफर। तो गांधी ने डू और डाई का जो स्लोगन दिता जी वो दिता ऑप्शन बी, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 1942 के दौरान जो गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की 1942 के विच उदों स्लोगन दिता डू और डाई, करो या मरो। ठीक है जी, ये गांधी की बहुत निंदा भी हुई भी पहला तो सारी उम्र गांधी जेडे सीगे वो नॉन वायलेंस के सिद्धांत से चलते रहे, लेकिन हुण डू और डाई का स्लोगन देता। ठीक है, और क्विट इंडिया मूवमेंट को लीडरलैस मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसनों बोलते हैं जी लीडर लेस मूवमेंट, क्योंकि सारे मेजर लीडर अरेस्ट हो गए थे ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, बाय विच बैटल फ्रेंच पावर कोलैप्स इन इंडिया, केड़ी बैटल दे नाल इंडिया दे विचों फ्रेंच जिहड़ी पावर खत्म हो गई सी। ऑप्शन देखते हैं, बैटल ऑफ बेदारा, एंग्लो कार्नेटिक वॉर, बैटल ऑफ वेंडी वॉश, या सेकेंड कार्नेटिक वॉर। सो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, बैटल ऑफ वेंडी वॉश। बैटल ऑफ वेंडी वॉश जिहड़ी हुई वो हुई 1760 दे विच ब्रिटिशर्स ते फ्रेंच दे विच। ठीक है, और ये वॉर जिहड़े फ्रेंच हार गए। ठीक है जी, और ब्रिटिशर की सरपरस्ती हो गई इंडिया दे विच। ठीक है जी,
सो इस बैटल के नाल फ्रेंच इंडिया चो खत्म हो गई जी, कोलैप्स हो गई उन्होंने पावर। सैकेंड बैटल ऑफ वेंडी वॉश। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भगत सिंह रोट आर्टिकल इन विच लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगत सिंह केड़ी लैंग्वेज दे विच आर्टिकल लिखते सीगे? ऑप्शन आर पंजाबी एंड इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी, पंजाबी एंड उर्दू या उर्दू एंड इंग्लिश। मेरे बहुत स्टूडेंट्स ने भुलेखा होंगे कि भगत सिंह पंजाब तो बिलोंग करते सी तां भगत सिंह पंजाबी च लिखते होंगे, लेकिन इसका आंसर पंजाबी नहीं है जी। इसका आंसर है ऑप्शन डी उर्दू एंड इंग्लिश। भगत सिंह उर्दू ते इंग्लिश लैंग्वेज दे विच आर्टिकल लिखते सी ते वंडते सी। ठीक है जी, उर्दू एंड इंग्लिश। नेक्स्ट, When did revolt of 1857 started? Revolt of 1857 कदों स्टार्ट होया? ठीक है जी। सो मैं तो अपना आंसर थोड़ा डिस्कस करते हैं जी किमें है। 29 मार्च 1857 ਨੂੰ मर्डर किया मंगल पांडे ने दो ब्रिटिश ऑफिसर यूसन ते बोदा। ठीक है, तो स्टूडेंट को बहुत बार भुलेखा पै जाता है कि जो मर्डर किया तो उसी दिन रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। नहीं, एक्चुअली जिमें ही उन्होंने मर्डर किया मंगल पांडे ने, मंगल पांडे की अरेस्ट पै गई तो बाकी काफ़ी सारे सोल्जर्स अरेस्ट कर लिते गए। फिर 10 मई 1857 ਨੂੰ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया कि ਜਿਹੜੇ सोल्जर्स ने एनफील्ड राइफल्स यूज़ करने तो मना किया, कार्ट्रिजेस यूज़ करने तो मना किया, उन्होंने सज़ा दी जाएगी। ठीक है जी। तो जिथे प्रोग्राम किया ओपन दे विच तां पब्लिक ते बाकी सोल्जर भड़क गए, उल्टा उन्होंने ब्रिटिशर्स ते अटैक करता, ब्रिटिशर्स ते हमला करता, ब्रिटिशर्स दे यूरोपियंस दे घर जलाते, जेलां तोड़तियां। ठीक है, तो 10 मई 1857 इस द एक्चुअली डेट जदों रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होंदा है जी। और कितों स्टार्ट होंदा है? स्टार्ट होंदा है मेरठ तो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 10 मई 1857 केड़ी जगह जी? मेरठ तो। डन। चलो नेक्स्ट, विच नेशनल मूवमेंट इनसाइटेड पैट्रियटिज्म इन गढ़वाल राइफल्स एंड दे रिफ्यूज टू फायर ऑन द पब्लिक? केड़ी नैशनल मूवमेंट सी जिसने गढ़वाल राइफल्स देश भगती की भावना जगाती तो उन्होंने पब्लिक के उत्ते फायरिंग करन तो मना करता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं जी, बरदौली सत्याग्रह, रिवोल्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੜਵਾਲ ਰਾਈਫਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਸੌਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਹੂ ਵਰ ਕੋਰ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ HSRA? हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसीएशन। इन्हां दे विचों HSRA दे कोर फाउंडर कौन कौन सी? ऑप्शंस देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान या भगत सिंह। सो इसका करैक्ट आंसर है जी ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ये सारे जेडे सारे अपने फ्रीडम फाइटर्स ने सारे ही HSRA दे फाउंडर ते मैंबर से। हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसीएशन पहले HRA हुंदा सी, फिर भगत सिंह ने खास करके सोशलिस्टिक वर्ड सजेस्ट किया तो ये हो गया HSRA। डन। चलो, रियोतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड एट? रियोतवाड़ी सिस्टम कित्थे इंट्रोड्यूस होया जी? ठीक है, चलो पहला आप थोड़ा डिस्कस करते हैं रियोतवाड़ी सिस्टम है की जी। देखो, रियोतवाड़ी सिस्टम दे विच की सीगा जी कि ਜਿਹੜਾ टैक्स है लैंड रेवेन्यू है, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ सॉइल ते नेचर ऑफ क्रॉप के अकॉर्डिंग होएगा। जेड़े एरिया सॉइल की क्वालिटी वधिया उत्थे टैक्स ज़्यादा होगा, जेड़े एरिया सॉइल की क्वालिटी वधिया नहीं उत्थे टैक्स घट होगा। जिथे सॉइल की क्वालिटी वधिया सी, खेती ज़्यादा होंदी सी, लैंड रेवेन्यू सीगा 60% ऑफ टोटल प्रोड्यूस। जिथे सॉइल की क्वालिटी वधिया नहीं सीगा उत्थे लैंड रेवेन्यू सीगा 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। ठीक है जी, दिस वॉज रियोतवाड़ी सिस्टम। तो यह इंट्रोड्यूस कितने हुए है जी? बॉम्बे, मद्रास, असम या ऑल ऑफ अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। ये तीनों जगह इंट्रोड्यूस होया, बॉम्बे, मद्रास, असम। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया जी? थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड। थॉमस मुनरो ते चार्ल्स रीड ने इंट्रोड्यूस किया। डन। चलो,
वेयर डिड फ्रेंच एस्टैबलिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री, जो फ्रेंच ने इंडिया के उपर इंडिया के उपर कुछ एरियाज कब्जा करना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपनी पहली टैरीटरी कित्थे अपनी पहली फैक्ट्री कित्थे लगाई। ठीक है जी, ऑप्शन देखते हैं मसौलीपट्टनम, सेरिंगापट्टनम, सूरत या पुडुचेरी। द करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी सूरत। ठीक है, फ्रैंकोइस कैरोन ने लगाई सी कि पहली फैक्ट्री लगाई सूरत दे विच फ्रेंच ने। डन। नेक्स्ट, हु कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल नूं सरदार दा टाइटल किसने दिता जी? ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फार्मर्स ऑफ बरदौली। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ते ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां ਸੀਗੀਆਂ बरदौली ਦੀਆਂ जिथे सरदार पटेल ने सत्याग्रह किया जी, इन्हों ने मिल के सरदार का टाइटल दिता वल्लभ भाई पटेल नूं और इत्थों इन्हों का नाम पै गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी, कदों दिता? ड्यूरिंग बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह होया जी 1928 दे विच। ठीक है, कदों दिता है टाइटल? 1928 दे विच। डन। चलो, हु कंपोज द सॉन्ग पगड़ी संभाल जट्टा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत बार रिपीट होंदा है। हु कंपोज द सॉन्ग पगड़ी संभाल जट्टा। सॉन्ग किने कंपोज किया? भगत सिंह, सुखदेव, बांके दयाल या मोहम्मद इकबाल ने। दोस्तों का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी बांके दयाल। इन्हों ने कंपोज किया सॉन्ग पगड़ी संभाल जट्टा। ठीक है जी, एक और सॉन्ग है जड़ा मोहम्मद इकबाल ने कंपोज किया, वह भी देख लेने हैं जी। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। यह सॉन्ग किने कंपोज किया? मोहम्मद इकबाल ने। आगे देखते हैं जी, हु वॉज द यंगेस्ट इंडियन रेवोल्यूशनरी टू बी हैंग्ड। सब तो छोटी उम्र दे विच इंडिया च किसनूं फांसी हुई? ऑप्शन आर सचिन सान्याल, उधम सिंह, भगत सिंह या खुदीराम बोस। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी खुदीराम बोस। 18 साल तो भी घट उम्र सी जदों खुदीराम बोस नूं फांसी हुई। खुदीराम बोस ते प्रफुल ਚੱਕੀ इन्हां दोनों साथियों ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट सीगे किंग्सफोर्ड, उन्हां दा मर्डर करने की कोशिश की, उन्हां दे उपर बॉम्ब गिरिया लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। ठीक है, और खुदीराम बोस ते प्रफुल ਚੱਕੀ नूं फांसी हो गई और खुदीराम बोस नूं सब तो छोटी उम्र दे विच इंडिया च फांसी हुई। ठीक है जी, बहुत जने का आंसर भगत सिंह या उधम सिंह लगा देंगे ने, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है खुदीराम बोस। डन। आगे देखते हैं जी, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा के फाउंडर कौन सीगे जी? ऑप्शन आर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आज़ाद। सो नौजवान भारत सभा के जोड़े फाउंडर सीगे दोस्तों वो सीगे जी भगत सिंह। ठीक है जी, भगत सिंह इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जी रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन सी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय या आत्माराम पांडुरंग। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। ही वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। आगे देखते हैं, व्हेन डिड गांधी यूज हंगर स्ट्राइक एज अ मेन वैपन फॉर द फर्स्ट टाइम। कदों गांधी ने भुख हड़ताल नूं हथियार के तौर पर वरत्या, एज अ वैपन यूज किया जी फर्स्ट टाइम। ऑप्शन आर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि 1918 दे विच हुई। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इंडस्ट्रीयल स्ट्रगल कहा जाता है। अहमदाबाद दे मिल वर्करस ने गांधी ने इनवाइट किया जो उन्होंने हड़ताल की हुई सी। गांधी ने पार्टिसिपेट किया हड़ताल दे विच ते भुख हड़ताल नूं एज अ वैपन यूज किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया। वास्को डी गामा केड़े ईयर दे विच इंडिया है जी? ऑप्शंस आर 1491, 1495, 1498 या 1504। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी 1498। 1498 दे विच वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज, पहले पोर्चुगीज जो इंडिया आए। किहड़े समुद्री रस्ते तो आए जी? केप ऑफ गुड होप, केप रूट कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप तो आए।
ठीक है जी, वास्को डी गामा। पहली कैपिटल किहड़ी बनाई इंडिया दे विच? कैपिटल बनाई जी कोचीन, ठीक है। रिसीव किने किया जी? किंग सीगा जैमोरिन, जिसने रिसीव किया वास्को डी गामा नूं। कित्थों आए सी? पोर्चुगल तो। ही वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज, ठीक है जी। अगला देखते हैं, हु इज रिगार्डेड एज बंगाल टाइगर? किनू कहा जाता है जी बंगाल टाइगर? ऑप्शंस आर डलहौजी, वेलेसी, कॉर्नवालिस या क्लाइव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नू कहा जाता, मतलब वेलेसी नू कहा जाता है जी बंगाल टाइगर। ही इज़ द फेमस फॉर द सिस्टम ऑफ सबसिडरी अलायंस। आप पिछले लेक्चर भी डिस्कस किया सीगा, सबसिडरी अलायंस शुरू किया इन्होंने, ठीक है जी। प्रेस सेंसरशिप एक्ट लेके आए, फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी, टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, ठीक है। तो वेलेसी नू कहा जाता है बंगाल टाइगर। नेक्स्ट, विच एक्ट कंप्लीटली अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। किहड़े एक्ट दे नाल ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली खत्म होगी, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं जी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। इसी एक्ट दे नाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह खत्म हो गई और जेडे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सी की बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 सीगा जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी मोनोपोली खत्म की गई, लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ दो चीज़ों च मोनोपोली रह गई सी ब्रिटिशर्स दे कोल। की चीज़? एक तो टी ट्रेड, दूजा ट्रेड विद चाइना, ठीक है जी। ये दो मोनोपोलीज बचियां सी। चार्टर एक्ट ऑफ 1830 के नाल सारी मोनोपोलीज खत्म हो गई। डन, चलो। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश लैंग्वेज इन कॉलेजेस? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विलियम बेंटिक, लैंसडाउने, मैक्यूले या चार्ल्स मेटकाफ? सो मैक्यूले वॉज द परसन जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की थी जी कॉलेजेस दे विच, ठीक है, मैक्यूले। शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवल प्लान टुक प्लेस इन विच ईयर? शिमला कॉन्फ्रेंस या वेवल प्लान, ठीक है, एक केड़े ईयर दे विच होया? कॉन्फ्रेंस बुलाई गई शिमला दे विच, इंडियन नैशनल कांग्रेस नूं इनवाइट किया गया, मुस्लिम लीग नूं इनवाइट किया गया, लेकिन ये फेल हो गई सी। सो इट टुक प्लेस इन 1945, 1945 दे विच होई जी शिमला कॉन्फ्रेंस ते वेवल प्लान। नेक्स्ट, When did काकोरी ट्रेन डकैती और काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस? काकोरी ट्रेन डकैती फेमस साडी हिस्टरी दे विच, ठीक है। इंडियन रेवोल्यूशनरीज ने एक ट्रेन ते हमला करके ट्रेन च जिहड़ा सरकारी खजाना जा रहा सी वो लुट लिया, ठीक है। और एक घटना कदों हुई जी? ऑप्शन बी 1925 दे विच। राम प्रसाद बिस्मिल ते अशफाक उल्ला खान दे मास्टरमाइंड सी, ठीक है। 29 इंडियंस अरेस्ट हुए इस केस च, 4 जने नूं फांसी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी ते रोशन लाल, ठीक है जी। 4 इंडियंस वर हैंग्ड, ठीक है जी। रोशन लाल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान ते राजेंद्र लहरी। ये 4 जने सीगे जिन्होंने फांसी हुई काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस दे विच। नेक्स्ट, विच सोशल रिफॉर्मर हेल्प लॉर्ड डलहौजी इन इंट्रोडक्शन ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट? ठीक है जी, केड़ा सोशल रिफॉर्मर सी जिन्हें डलहौजी दी विडो रीमैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस करन च हेल्प की? ऑप्शन देखते हैं जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है जी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज द करेक्ट आंसर। डन, आगे देखते हैं। बाय विच एक्ट इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? केड़े एक्ट दे नाल इंडिया दे विच पहली बारी इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस होया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? सो द करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो बाद
गवर्नमेंट ने इंडिया च इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया उस टाइम के जोड़े वाइस रॉय सी दैट वॉज लॉर्ड कैनिंग कैनिंग के टाइम के विच इंट्रोड्यूस होया जी कि इनकम टैक्स ठीक है। और इसी एक्ट के नाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बन गए वाइस रॉय ऑफ इंडिया बन गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया चो खत्म हो गई। डन चलो। वाई इंडियन रेवोल्यूशनरीज अपोज साइमन कमीशन इंडियन रेवोल्यूशनरी साढ़े क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन क्यों अपोज किया। ऑप्शन आर बिकॉज दे वर डिक्लेयरिंग डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया बिकॉज ऑल द 7 मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स बिकॉज दे प्रिपेयर्ड रॉन्ग रिपोर्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर या फोर्थ दे केम टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। तो दोस्तों द करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी बिकॉज ऑल द 7 मेंबर्स वर इंडियन। साइमन कमीशन केड़े ईयर दे विच आया जी 1928 दे विच आया साइमन कमीशन इंडिया च ठीक है। 7 मैंबर सीगे ते चेयरमैन सीगे जॉन साइमन। चेयरमैन कौन सीगे जॉन साइमन और 7 ਦੇ 7 मैंबर की सी ब्रिटिशर्स। इंडियंस का कहना सी साडे लई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना है ठीक है और साडे लई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना है और जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन साडे लई फ्रेम होना है ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक भी मैंबर इंडियन नहीं है और सारे मैंबर्स की हैं ब्रिटिशर्स ने ठीक है। सो प्रोटेस्ट किया साइमन गो बैक के नारे लगाए और इसी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ऑफिसर स्कॉट ने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिता जिस दे विच लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह घायल हो गए और बाद दे विच उन्हां दी हॉस्पिटल दे विच डेथ हो गई ठीक है जी। चलो नेक्स्ट द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859 हु रोट दिस बुक। ये बुक किने लिखी है जी। ऑप्शंस आर वी.डी. सावरकर, कार्ल मार्क्स, जॉन मार्शल या जे.एम. कीन्स। जी बुक लिखी है जी लिखी है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है जी। नेक्स्ट इन विच सत्याग्रह रविंद्रनाथ टैगोर कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ महात्मा ऑन मोहनदास गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी नू रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का टाइटल दिता तो किहड़ी घटना के दौरान दिता जी। ऑप्शन देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, पूना पैक्ट या चंपारण सत्याग्रह। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 दे विच ठीक है जी महात्मा का टाइटल दिता किसनू मोहनदास गांधी नू किसने रविंद्रनाथ टैगोर नू। नेक्स्ट वाई डिड अली ब्रदर्स स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट। अली ब्रदर्स ने खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट की। वैसे तो आप पिछले लेक्चर थोड़ा डिस्कस किया फिर भी देख लें जी। ऑप्शन ए इज डिसऑनर ऑफ खलीफा एंड टर्कीज एंट्री इनटू वर्ल्ड वॉर 1। खलीफा जो धर्म गुरु सीगे मुस्लिम्स दे उन्हां दा डिसऑनर होया और टर्की वर्ल्ड वॉर 1 एंटर कर गया एक रीजन। सैकेंड है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू इजिप्ट जिहड़ा इजिप्ट दे नाल अन्याय किया गया ओदे अगेंस्ट। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू अरेबिया या टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू पर्शिया। सो द करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए ठीक है जी डिसऑनर ऑफ खलीफा एंड टर्कीज एंट्री इनटू वर्ल्ड वॉर 1। नेक्स्ट विच रेवोल्यूशनरी एक्ट इज नोन एज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। केड़ी घटना नूं कहा जाता है इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप पिछे भी डिस्कस कर चुके हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 नूं कहा जाता है जी इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट विच वाइस रॉय ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट सेंसस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया का फर्स्ट सेंसस होया कदों जी। पहला सेंसस 1872 दे विच ठीक है। किने ऑर्गेनाइज किया लॉर्ड मैक्यूले, लॉर्ड मायो, लॉर्ड कैनिंग या जॉन लॉरेंस। जिसनों का टाइम सीरीज पता है जी ठीक है वाइस रॉय जी वो लिए क्वेश्चन ईजी है। 1872 इंडिया के वाइस रॉय कौन सीगे जी लॉर्ड मायो। सम मायो इंट्रोड्यूस्ड या ऑर्गेनाइज इंडिया फर्स्ट सेंसस ठीक है जी। और मायो इकलौता वाइस रॉय है जिसका मर्डर होया जी। ही वॉज द ओनली वाइस रॉय टू बी मर्डर्ड बाय शेर अली अफरीदी ठीक है जी। नेक्स्ट हु गेव द स्टेटमेंट गो बैक टू वेदास। इंपॉर्टेंट है जी वेदों की तरफ वापस चलो ये स्टेटमेंट किसने दी। ये स्टेटमेंट किस दी। ऑप्शन देखते हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद या रामकृष्ण परमहंस। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टेटमेंट दी थी गो बैक टू वेदास ठीक है जी।
नेक्स्ट लिखो, हु इज रिगार्डेड एज लोकमान्य। ये टाइटल है लोकमान्य, किनू कहा जाता है जी लोकमान्य। ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण या गोपीनाथ बरदौली। ਜਿਹੜੇ ट्रेन्स 'ਚ बहुत फ्रीकुएंटली सफ़र करते रहते हैं उन्होंने ये क्वेश्चन ध्यान 'ਚ होऊगा। लोकमान्य तिलक नाम की ट्रेन चलती है जी, महाराष्ट्र से स्टेशन है। सो करैक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, व्हेन डिड इंडियाज फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड। पहली बार इंडिया सुप्रीम कोर्ट कदों बनी जी। ऑप्शंस आर 1757, 1762, 1774 या 1789। ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਦੇ ਨਾਲ 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਵਾਰਨ हेस्टिंग्स। चलो आगे देखते हैं। विच एक्ट अबॉलिश डायरकी फ्रॉम द प्रोविंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किहड़े एक्ट दे नाल जिहड़ी डायरकी सी प्रोविंसेस तो खत्म करती लेकिन सेंटर दे विच इंप्लीमेंट कर दी। ऑप्शन देखते हैं जी, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाल प्रोविंसेस तो डायरकी अबॉलिश हो गई सी। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन सी? मुस्लिम लीग फाउंड हुई जी 1906 दे विच। ठीक है जी। ऑप्शंस आर आगा खान, मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद इकबाल या निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो ये फाउंडर सीगे जी इन्हां विच्चों आगा खान। ठीक है। मुस्लिम लीग की ही डिमांड ते फर्दर पाकिस्तान रियलिटी विच कन्वर्ट होया, पाकिस्तान बनया। ठीक है। जो पाकिस्तान जिहड़ा है टर्म है पाकिस्तान की सब तो पहला जिहड़ी डिमांड है वो किने कीती जी? चौधरी रहमत अली। लंडन च एक स्टूडेंट सीगा जी, मुस्लिम स्टूडेंट चौधरी रहमत अली, सब तो पहला इन्हें टर्म दी डिमांड की पाकिस्तान की। ठीक है जी। फिर मोहम्मद इकबाल ने इसनूं रेज किया पाकिस्तान, और फाइनली मोहम्मद अली जिन्ना ने इसनूं प्रैक्टिकैलिटी च कन्वर्ट किया। ठीक है जी। तो ये सारे मुस्लिम लीग के मैंबर रहे। तो मुस्लिम लीग की डिमांड के कारण ही की बनया फाइनली पाकिस्तान। Who said in the context of Cripps mission that it is a post-dated check on crashing bank। किने मेना मारा जी कि जो क्रिप्स मिशन है वो एक पोस्ट डेटेड चैक है क्रैशिंग बैंक का। ठीक है। क्रिप्स मिशन आया किहड़े ईयर दे विच? क्रिप्स मिशन आया जी 1942 दे विच, जिहदे चेयरमैन सीगे स्टैफर्ड क्रिप्स। ऑप्शन देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनायक दामोदर सावरकर या महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने मेना मारा क्रिप्स मिशन अ पोस्ट डेटेड चैक ऑन क्रैशिंग बैंक। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, हु इज रिगार्डेड एज दीन बंधु। इन्हां विचों किसनूं कहा जाता है जी दीन बंधु? CF एंड्रयूज, राजेंद्र प्रसाद, CR दास या जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज नूं कहा जाता है दीन बंधु, तो ऑप्शन जी सी है CR दास, इन्हां नूं कहा जाता है जी देश बंधु। ठीक है जी। चलो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ महलवाड़ी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के विच आंदा महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम के फाउंडर कौन सी? हॉल्ट मैकेंजी, चार्ल्स रीड, मालकॉम मैकडोनल्ड या आर्कीबाल्ड एडवर्ड। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है। जिहड़ा महलवाड़ी सिस्टम है इहदे की सी जी पूरे विलेज का या ग्रुप ऑफ विलेजिस का एक ग्रुप क्रिएट हो जाता सीगा, मल्टीपल विलेजिस का, जिन्होंने बोलते सीगे महल। ठीक है। तो उन्होंने जिहड़ा इकट्ठा लैंड रेवेन्यू देना हुंदा सी ब्रिटिश सरकार नूं, उसनूं बोलते सी महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है जी। हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट, वैन डिड लखनऊ पैक्ट साइंड। बहुत बार रिपीट होंगे जी लखनऊ पैक्ट कदों साइन होया? लखनऊ पैक्ट इंडियन नैशनल कांग्रेस ते मुस्लिम लीग दे विच ज्वाइंट पैक्ट सीगा जी। ठीक है। INC एंड मुस्लिम लीग। ठीक है जी। ये कदों होया जी 1916 1916 दे विच होया जी लखनऊ पैक्ट साइन। ठीक है। और उस टाइम जेड़े
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਅੰਬਿਕਾ ਚਰਨ ਮਜੁਮਦਾਰ। अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब? किने लिखी है जी फिलोसफी ऑफ बॉम्ब? ऑप्शन आर भगवती चरण वोहरा, सचिंद्र नाथ सान्याल, सुखदेव या शिवदास राजगुरु। सो दोस्तों का करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए भगवती चरण वोहरा। इन्हों ने लिखी है जी द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज द एडिटर ऑफ न्यूज़ पेपर्स मराठा एंड केसरी? ठीक है जी, दो न्यूज़ पेपर है मराठा एंड केसरी। मराठा सीगा जी हिंदी लैंग्वेज विच और केसरी सी जी मराठी लैंग्वेज विच। ठीक है, नाम तो लगता है कि उल्टा होना चाहिए लेकिन है इदा ही सी, मराठा हिंदी केसरी मराठी च। तो यह न्यूज़पेपर किने एडिट किए? ऑप्शन देखते हैं जी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सिराज कृपालाचारी या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी, महाराष्ट्र की शान सी बाल गंगाधर तिलक ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर मराठा एंड केसरी। ठीक है जी, चलो। Who was the first and last Indian Governor General of Independent India? आजाद भारत के पहले ते आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल कौन सी? ऑप्शंस आर सी राज कृपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आचार्य विनोबा भावे या माउंट बैटन। सो आजाद भारत के पहले ते आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल सीगे जी सी राज कृपालाचारी। इस तो बाद ये पोस्ट खत्म होगी। ठीक है जी, आजाद भारत के जोड़े पहले गवर्नर जनरल सीगे वो सी माउंट बैटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज माउंट बैटन बट फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल वॉज सी राज गोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ठीक है जी दोस्तों, ये सीगे अपने पार्ट सैकेंड दे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप टोटल दोनों पार्ट दे विच 50-50 करके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो पंजाब के एग्जाम दे विच मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इदा ही अपनी मिडीवल हिस्टरी, अपनी एंशंट हिस्टरी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जोग्राफी, जनरल साइंस, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इदा ही डिस्कस होंगे जो पेपर विच रिपीट होंगे ने। ठीक है, सो चैनल के नाल जुड़े रहो, वीडियो के नाल जुड़े रहो ताकि थोड़ा कोई भी क्वेश्चन मिस ना होए। ठीक है जी, और थोड़ा साडे वालों जो भी असी थोड़ा फायदा कर सकते हैं वीडियो के राही थोड़ा उन्ना फायदा होता रहे। ठीक है, सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के नाल। ठीक है, कुछ नवा लैके आने। ठीक है, सो उदों तक अपना ते अपने परिवार का ध्यान रखो। ठीक है जी।